Yes, sir. Welcome. Welcome. A very good afternoon. A very good afternoon to all of you. We are grateful to all who have accepted our invitation to be the part of this elite event. It is a favorable time to discuss about the sociology of cinema with delegates. Today we have amongst us Mr. Anjani Kumar, who is a great actor. A hearty welcome to you, sir. We are indeed delighted to have you with us. With us, we also have on the dais our respected professors, Dr. Ravinder Singh and Dr. Arun Kumar. It's our holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event, so let's dedicate a prayer to Ma Saraswati. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको ये अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर आवाज आ रही है भाई? हाथों में बीना, मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Thank you so much. You have truly spread the spiritual vibes with your magnetic voice. Now I express my gratitude to our esteemed principal, Dr. Pragya Khanna, for their approval to this interactive session with Mr. Anjani Kumar. She has assisted us in not just our development, but also in enhancing our creativity and knowledge. We feel privileged to have such a distinguished chief guest, Mr. Anjani Kumar, among us. Mr. Anjani Kumar needs no introduction, having spent valuable years in cinema. I may be permitted to give a brief introduction about his accomplishments, academic attainments, and his chosen field. Mr. Anjani Kumar was born in Ballor village at Darbhanga in Bihar. His parents were Sri Bharat Narayan and Srimati Purnima Devi. He had completed his schooling from his own village and from the area where he was living, and he completed his higher studies from Mithila University, Darbhanga. He had done honors in botany and masters in sociology. After that, he came to Delhi and started preparing for Union Public Service Commission. He got selected in L&B company, but he resigned from there and came back to Delhi. Then he started his career from a TV serial named Ajab Gajab, in which Arvind Sharma was the director. He is known for his acting in Mela Anchal, in which he played a lead role. Some of his famous Hindi cinema movies are Panchi, in which he played role with Manoj Bajpayee, then Surya, in which he played role with Milan Suman, then Ganga Jal, in which he played his role with Ajay Devgan. He has also worked in Bhojpuri film industry, and some of his Bhojpuri films are Ganga Tohre Desh Mein, Saiya Bhai Thanedar.
And last but not the least, his upcoming movies are Aratnand, in which he plays a lead role, and Apne Ghar Mein Bhi Roti Hai, in which also he played a lead role. Then I would like to request Dr. Arun Singh to say something about Vimarsh, about the Department of Sociology. Please, sir. हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। अंजनी सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे वक्त निकाला और हमारे बीच आए और हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए आप इस तरीके से, मतलब एकदम से, जैसे सर ने आपसे बात करी, रविंद्र सर ने बात करी, और आप एकदम उत्सुक होकर फटाफट से तैयारी करके, ये जो हमारा बेसिकली एक इनिशिएटिव रहता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स से बच्चों की थोड़ा इंटरेक्शन करवाएं, उनसे मिलाएं। इसमें आप लोगों का सहयोग ही हमें आगे बढ़ाता है, आप लोगों के सहयोग से ही हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे बच्चों को इंस्पायर और इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। बेसिकली सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में हम कुछ इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन फोरम हमारा है, जहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक फोरम की शक्ल में, एक एसोसिएशन की शक्ल में हम लोग कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ नए नए लेक्चर करवाएं और नए लोगों से इंटरेक्ट करवाएं। और इसी सिलसिले में विमर्श एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लेक्चर्स करवाते हैं और लोगों को बुला के उनसे इंटरेक्ट करवाते हैं, जिसमें सोशोलॉजी से रिलेटेड अलग थीम्स पे अक्सर बात होती है। इस बार का एक जो हमारा एक टॉपिक रहा वो सोशोलॉजी ऑफ सिनेमा, जिस पे बात करने के लिए लोग हमारे पास कम मिलते हैं। हमारे इतने वो सच कहें तो उतने साधन नहीं होते हैं क्योंकि ये एक फील्ड एकेडमिक्स का अलग है और सिनेमा और एक्टिंग का फील्ड अलग रहता है। यहाँ से एक्सपर्ट्स को बुलाना इतना इतना भी आसान नहीं रहता है। इसके लिए मैं डॉक्टर रविंदर सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे बात करके और अपने कंटेक्ट्स को दोबारा रिवाइव करके आपको बुलाया और आपसे बात कराई हमारी। सोशोलॉजी में हम सोशोलॉजी अगर हम क्योंकि ये सोशोलॉजी बेसिकली एक पॉजिटिव साइंस है सोसाइटी की, जहाँ हम साइंटिफिकली समाज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा जो ये रोल्स है, स्टेटसेस है, जिससे एक्टिंग मतलब काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, काफी उसी पे निर्भर होती है। उसी तरीके से समाज में हम सब लोग भी रोल्स, स्टेटसेस, ये सब लेके अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं, जीवन गुजारते हैं। और एक इंसान अपनी लाइफ में कई सारे स्टेटसेस, कई सारे रोल्स प्ले करता है। हमारी एक अप्रोच रहती है सोशोलॉजी में जिसे हम कहते हैं ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच, जिसके अर्विंग कॉफमैन जो है उसके फाउंडर हैं, और उन्होंने ये सिखाया, ये बताया कि जिंदगी भी, जीवन भी एक स्टेज की तरह से, जिस तरह से एक एक्टर जो है परफॉर्म करता है लोगों के सामने आके, उसी तरीके से एक आम इंसान भी अपनी रेगुलर लाइफ में परफॉर्म करता है, अपने रोल को निभाता है। और अच्छा इंसान, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर, अच्छा एक्टर वही है जो उसको जो डिफाइंड रोल दिया गया उस टाइम, लिमिटेड टाइम में, उसको उसने अच्छे से परफॉर्म किया और वहीं से उसकी अपनी कला जो है वो उसने सामने दिखाई। इससे हम दुनिया को समझते हैं कि लोग किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ कैसे करते हैं, और किस तरीके से वो रिटायर होते हैं, बैक स्टेज में क्या कुछ होता है, अलग रोल्स को किस तरीके से वो कंपार्टमेंटलाइज करता है। एक सही एक्टर जैसे अंजनी सर हैं जो आगे आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से कि किस तरीके से एक्टर जो है वो कंपार्टमेंटलाइज करता है रोल में। अभी अगर वो एक विलेन का रोल कर रहे हैं तो ऐसा विलेन होगा कि वैसा बिल्कुल डूब के उसमें पूरा वही लगते हैं, और जैसे ही साथ में उनका किसी देवता का या किसी महान पुरुष का रोल करना पड़े इमीडिएटली और उसमें स्विच कर लेते हैं। हमारा जीवन भी, एक इंसान का जीवन भी, समाज में एक अच्छे इंसान का जो जीवन है वो इसी तरीके से है कि वो जो रोल परफॉर्म कर रहा है उसके उसी लिमिटेशंस में, उसी कंपार्टमेंटलाइजेशन में ही बांध के रखे। अगर वो टीचर है उस वक्त तो टीचर जैसे घर पहुंचा तो एक पिता हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, एक दोस्त हो सकता है, एक स्टूडेंट हो सकता है। तो अलग अलग रोल्स को ना ओवरलैप करते हुए कंपार्टमेंटलाइज करके सही परफॉर्मेंस देना है, जीवन को अच्छे तरीके से जीना है। और इस तरीके से ही हम एक अपनी एक रियलिटी को एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, रियलिटी को बिल्ड करते हैं, क्योंकि रियलिटी इज बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन। हम उस रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्शंस के जरिए, इंटरेक्शंस के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस फोरम में, इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा एक और बिल्कुल साथ में सर एक प्रोग्राम चल रहा है, स्टिक मके का एक प्रोग्राम है, कुछ आर्टिस्ट हैं जो आए हैं और हम अलग अलग जगहों पे यहाँ पे इंडियन क्लासिकल जो
म्यूजिक है, डांस, वो सब की के लिए वर्कशॉप करवा रहे हैं। तो अभी बाकी प्रोसीडिंग्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रविंदर सर को कि वो आगे इस प्रोसीडिंग को संभालें। वेरी वेरी फ्रॉम द department and my college, I extend my heartfelt thanks to you, sir. Please care forward. Thank you. Thank you a lot. You have given me the opportunity. नमस्कार, धन्यवाद जी। Thank you, sir. Thank you. To invite Mr. Dr. Ravinder Singh to say something about that. सबसे पहले तो अंजनी कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस शॉर्ट टाइम में हमारा इनविटेशन को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और आज बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने के लिए वो आज हमारे कॉलेज में है। सर, हम पूरे कॉलेज की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतने शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ टाइम में आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आज बताने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल एक रिनाउंड जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। मैं तो इतना बताऊंगा कि जो सोशियोलॉजी है, बेसिकली मैं हमेशा कहता आया हूँ आप सबको कि सोशियोलॉजी बेसिकली एक सिर्फ स्पेशल डिसिप्लिन नहीं है, ये एक सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। अगर आप सोशियोलॉजी को देखेंगे तो सोशियोलॉजी एक सिंथेटिक डिसिप्लिन है जिसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस की बात करते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर हो, सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा हो, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन हो, मिलिट्री सोशियोलॉजी हो या जेंडर सोशियोलॉजी हो। तो इसका स्कोप है वो एवर एक्सपैंडिंग है। अगर आज हम इस पर्टिकुलर वेबिनार की बात करें सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा विद हिंदी सिनेमा एक्टर अंजनी कुमार जी, इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड और सिनेमा में बहुत बड़ा फर्क है जो हमें जानना चाहिए कि फिल्म और मूवी और सिनेमा में क्या डिफरेंस है, जो आज हमें अंजनी कुमार जी बताएंगे। जहाँ तक सोशियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू रहा तो सोशियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज है जो आपको सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा के बारे में बताती हैं। जैसे अरुण सर ने कहा अभी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। क्लियर, ये पीटर बर्जन की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लाइफ किस तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड है। देन हमारे पास और भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज भी है। आज पूरे ग्लोब में जो डिबेट होती है कि मूवीज मतलब क्या, सिनेमा क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो इसी के साथ आगे इसको कैरी करते हैं आगे, और मैं अंजनी कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना सेशन को, इंटरेक्टिव सेशन को शुरू करें और अपने जितने भी वो हमें अपने थिएटर के बारे में, मूवीज़ के बारे में, फिल्म्स के बारे में वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे। और ओवर टू यू सर, यू कैन प्रोसीड। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आई एम वेरी मच ग्लैड just to attend this session, and I'm very much fortunate that I have got information from you people. You people are not an ordinary person, doctors and of course men of letters. I mean very much experienced and knowledgeable persons. And before you people, I'm going to say something and going to address the students of GLDM Hiranagar Government College, Degree College. Dear friends, this is a great moment for me. Just I'm going to address you. Actually, you people are the student of sociology. And sociology is what? A study of society. What do you study in society? You better know because you are studying sociology right now. Society is a combination of people where there is an interaction among the people with emotions and drama, and that is part of our life. तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप तो सोशियोलॉजी के छात्र हैं और सोशियोलॉजी जो है हमें समाज के बारे में ही बताता है, और समाज में सिर्फ एक चीज नहीं है। एक समाज जिस तरह शरीर के कई अंग हैं और हर अंग अपनी अपनी भूमिका निभाता है, अपने रोल को निभाता है, उसी तरह सोशियोलॉजी में स्टेटस एंड रोल भी है। स्टेटस हमारा क्या है और रोल क्या है। जिस तरह का स्टेटस है उस तरह का रोल भी होता है। स्टेटस के हिसाब से हमारी भूमिका होती है, और आप लोग जानते ही होंगे स्टेटस एंड रोल।
मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टेटस जो बनता है वो मैन मेड है। स्टेटस जो है हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है। दो तरह का स्टेटस होता है, ये तो एक तो आप ये सोशियोलॉजी में भी जानते हैं, स्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा अचीव्ड स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस जो होता है, जो वर्षों से चला आ रहा है, जो परंपरागत है, जो बाय बर्थ है, दैट इज कॉल्ड स्क्राइब्ड स्टेटस। बाय बर्थ यू आर गेटिंग दैट स्टेटस, और थ्रू कर्मा, on by dint of your hard labor you achieve something, that is achieved status। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इंसान को बाय बर्थ स्टेटस पे, अचीव्ड स्टेटस पे नहीं जाना चाहिए, उस पर कोई गुमान नहीं करना चाहिए, और उसको अचीव स्टेटस पे गुमा करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, स्क्राइब पे नहीं जाना चाहिए। जो परंपरागत चली आ रही है, जो जन्मजात मिला हुआ है, उस स्टेटस पे नहीं जाना है। और जो हम अचीव करते हैं लाइफ में, जो हमें प्राप्त होता है अपने मेहनत की वजह से, अपने विश्वास की वजह से, अपनी लगन की वजह से, हम किसी भी चीज को अचीव करते हैं, तो वही हमारा स्टेटस होता है, उसको हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब वो जो स्टेटस होता है कर्म की पूजा करने वाली बात, कर्म से जो स्टेटस प्राप्त होता है उसको अचीव्ड स्टेटस माना गया है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो कर्म जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आता हूं समाज और सिनेमा। सिनेमा भी एक अंग है समाज का। सिनेमा का मुख्य मकसद क्या है? एंटरटेनमेंट। लोगों को 3 घंटे या जितना देर आप किसी कहानी को देखते हैं, उसके पात्र को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं, उसमें आप डूब जाते हैं, उसमें आप चले जाते हैं। और जब आप चले जाते हैं तो आप जो भौतिक दुनिया की जिंदगी है उससे आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक नई दुनिया में चले जाते हैं, जहां आप अपने गम को, दुख को, सब कुछ को भुला देते हैं, और मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन मतलब मन का रंजन। मन आपका खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन जो है दूसरी तरफ चला जाता है। उस वक्त आप सारे दुख गम सब कुछ को भुला देते हैं। तो सिनेमा भी एक अहम भूमिका निभाता है समाज में, जिसका मुख्य उद्देश्य तो मनोरंजन भी है और प्रेरणादायी भी है। आप उससे प्रेरित भी होते हैं, किसी चरित्र को देख के, किसी पात्र को देख के, किसी खास कहानी को देख के आप भी इंस्पायर होते हैं, आप प्रेरित होते हैं। तो ये प्रेरणा का स्रोत भी है। ये समाज तो खुली किताब है। समाज में सबकी अलग अलग भूमिका होती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई किसी तरह, कोई मोची है। हर तरह की भूमिका है, और हर तरह का लोग समाज में रहते हैं जो अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं, और जो जिस तरह से बढ़िया निभाता है उसकी वाहवाही मिलती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, और आपकी जो भूमिका है, अगर आप अपनी भूमिका को तन मन धन से निभाएंगे तो आप कामयाब होंगे, और ये आपकी कामयाबी आने वाले जनरेशन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जिस भूमिका में हैं उसको हम 100% उसमें दे के, ताकत दे के, उसमें मेहनत करके उसको कामयाब करें। तो ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन बहुत ही चैलेंजिंग जीवन है। इसमें अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहें उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। अब मेरी कहानी है, मैंने भी एमए सोशियोलॉजी किया, आप लोगों को पता ही है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, तो उसमें मैंने काफी मेहनत की। हमारी कहानी की शुरुआत, वैसे तो मैं सिद्धार्थ का गृह त्याग एक ड्रामा था, एक नाटक था, उससे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। पहला थिएटर मेरा वही था। उस वक्त मैं 10 से 12 साल का रहा हूंगा। उस वक्त मुझे सिद्धार्थ की भूमिका को निभाने का मौका मिला। सिद्धार्थ, जिसका नाम महात्मा बुद्ध है, जिन्होंने कहा है कि इच्छा ही दुख का कारण है और इसके निदान भी हैं। तो उस तरह की भूमिका, इतना परफेक्ट भूमिका उस उम्र में 11-12 साल का बच्चा निभाता है, जिसमें काफी तालियां बजी, मुझे प्राइज भी मिला। तो उसमें एक समर्पण की भावना थी। मुझे लगता है कि मुझे हर चीज में, हर काम में मैं समर्पित हो जाता हूं,
टोटल टाइम डिवोट कर देता हूं और उसमें मैं तन मन धन से लग जाता हूं। शायद 11-12 साल की अवस्था में मैंने जो सिद्धार्थ की भूमिका निभाई, आज भी दर्शक मुझे याद करते हैं कि वाह क्या आपने रोल निभाया था। तो मेरे कहने का मतलब, जो स्टेटस मुझे मिला था सिद्धार्थ बनने का और जो मैंने रोल किया, तो स्टेटस एंड रोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा और तन मन धन से आप उसमें डूब जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो आपकी वाहवाही होगी। मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से, जो आप लोग तन मन धन से आगे बढ़ें, अपनी कामयाबी की बुलंदी पे जाएं। मैं तो यही कहना चाहूंगा। विशेष मेरी जो फिल्मी यात्रा है वो बहुत चैलेंजिंग रहा। कहा ना मैंने कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इटली की राजधानी एक दिन में नहीं बना। बहुत खूबसूरत शहर है, राजधानी है रोम। उसको देखने के लिए दूर दूर से पूरे इंडिया, क्या पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग जाना चाहते हैं। तो इतना खूबसूरत बना है, लेकिन एक दिन में नहीं बना, उसका भी लंबा इतिहास है। तो हर चीज का एक इतिहास होता है। हिस्ट्री जो है, बिना इतिहास के पीछे की चीज जो है वो हमें आगे आने के लिए प्रेरित करता है। बिना इतिहास का, बैकग्राउंड का, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरा भी बैकग्राउंड, मैं एक एवरेज फैमिली से रहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से रहा। मेरे पिताजी भी जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में जाऊं। मैं खुद ही यूपीएससी छोड़ के फिल्म में चला गया, क्योंकि मेरा एक डिवोशन था, मुझे एक लगन थी। तो उसमें मुझे कामयाबी मिली, और कामयाबी जितनी भी मिली उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं था उस तरह से देखा जाए। हमने दिन रात मेहनत की, हमने तपस्या की, कह दीजिए कि हमने सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ने का तय किया था, प्रण किया था। और जब आदमी ठान लेता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो उसी तरह मैं यहाँ से दिल्ली आया, दिल्ली से मैं मुंबई गया। मुंबई में कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं इतनी मेहनत किया और इतनी क्षमता बटोरी कि मुझे विजय आनंद, पार्थो घोष, प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर, प्रकाश झा, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर रविंदर जी को, डॉक्टर अरुण जी को, और डॉक्टर प्रज्ञा खन्ना जी को, जो मुझे आपने ये मौका दिया। जी जब रविंदर जी कुछ पूछना या कहना चाहते हैं, बताइए। आप लोग कुछ डिस्कस करिए, कुछ बात करिए। मैं ही बोलता रह गया। मैं बोलता हूं तो तूफानी दौर में बोलना शुरू कर देता हूं। कुछ रूबरू होइए तो मजा आएगा। हेलो, आप लोग हमें सुन रहे हैं? Question and answer session. Let's begin. You can ask any question. Now we will begin an interactive question and answer session. You can ask any question of your choice. स्टार्ट करो। दोबारा रिपीट करो। Now we will begin an interactive question and answer session. You can ask any question. Any question you have? Good afternoon, sir. हाँ, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। सर, सोशियोलॉजी का सिनेमा में क्या रोल है? सोशियोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो ये सोशियो प्लस लोगोस। सोशियो माने होता है सोसाइटी, लोगोस माने स्टडी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या सिनेमा समाज का अंग नहीं है? यस सर। ये पार्ट है कि नहीं? सिनेमा जो है क्या है? समाज का एक दर्पण है। समाज की अंदरूनी चीजों का एक दर्पण है, जिसमें समाज की घटनाओं को चित्रित किया जाता है। सिनेमा के जरिए हम समाज की घटनाओं को, सच्ची घटनाओं को, काल्पनिक घटनाओं को दिखाते हैं। सिनेमा एक माध्यम हो गया समाज के विभिन्न चीजों के बारे में बताने का। समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो कहानियां हैं, लोगों की जिंदगी है, उसको हम दिखाते हैं।
तो समाज की ही चीजों को हम दिखाते हैं, तो समाज का अंग हो गया, इसलिए इट्स क्वाइट रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। सर अगर किसी ने अपने मतलब कि जी बोलिए बोलिए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, my name is Malvi. जी मालवी। I want to ask you a question about how to make career in cinema. ओहो ग्रेट। व्हाट्स योर मालवी? हाँ जी सर। Anybody can make career in cinema. Cinema is such a field ki any time or in any age you can go into that. You will have to understand the cinema. As an actor, if you want to join, as a script writer, you want to join, as a director, you want to join. Which field do you like to join? What field you want? आप सिनेमा में आना चाहती हैं, किस तरह आना चाहती हैं? एक्टर के तौर पे तो एक्टर की ट्रेनिंग होती है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए अच्छे मतलब शब्द का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जबान शुद्ध होनी चाहिए, डायलॉग आपको याद होना चाहिए, एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, डायलॉग किस तरह डिलीवरी होगी वो आना चाहिए। मेमोरी की एक्सरसाइज होती है, आपको डायलॉग याद रहना चाहिए, ये ना कि आप भूल जाए बोलते वक्त, और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक्टिंग के लिए तो ये है, हर चीज के लिए कोर्स है, और बिना देखते देखते भी इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप देख के भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे आप किसी ने एक्टिंग किया तो किस तरह वो एक्टिंग करता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे बोलता है, एक्टिंग में वही चीज है। ओके सर, जैसे जैसे मैं एक लाइन बताता हूँ, आपका नाम क्या है, इसको मैं बोल रहा हूँ आपका नाम क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ आपका नाम क्या है। वो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे बोल रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये सिनेमा में यही सिखाया जाता है, एक्टिंग में यही सिखाया जाता है कि जिस तरह का चरित्र है उस तरह की जबान होनी चाहिए, उस तरह के वाक्य बोले जाने चाहिए, और जो स्क्रिप्ट राइटर लिख के देता है वही बोली जाएगी। पीछे if you want to ask, you can ask. If you want to ask, you can ask one question. Sir, I have a question for you. How are the scripts which are written for movies are related to our real life? You want to write the script? Speak in English. सर जो हम स्क्रिप्ट्स वो लिखते हैं फिल्म बनाने के लिए, तो वो हमारी रियल लाइफ से कैसे, मतलब उसमें ऐसी स्टोरीज डाली जाती हैं तो हमारी रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? रियल ऐसी जो भी कहानी लिखी जाती है, आप गौर से देखेंगी कि वहां कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो हमें टच करते हैं, हमको छूते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि जीवन में बहुत तरह की भावनाएं होती हैं, बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं पूरी फिल्म में कोई ना कोई कैरेक्टर होगा जो रोता है, हंसता है, या कोई इंटरेक्शन करता है, वहां लगता है कि ये इस तरह की बात मेरे साथ भी हो रही है। ऐसा एक भी फिल्म नहीं है जिसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब आपकी भावना है, आपका थॉट किसी भी कैरेक्टर से नहीं मिलता जुलता है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सर। जी सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा सा एक जैसे कोई अगर डेमो दें बच्चों को, एक काइंड ऑफ वर्कशॉप हो जाएगा कि जी एक्टिंग सर जी। करें तो मैं बच्चों को दिखाऊंगा। हाँ राइट राइट राइट, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को भूल जाना है, इस बात को याद रखना है। फॉरगेट योरसेल्फ, अपने आप को भूल जाइए। अपने आप को भूलने का मतलब, मेरा नाम जैसे अंजनी कुमार है तो इस वक्त मैं अंजनी कुमार नहीं हूं, मैं एक रोल कर रहा हूं। और रोल क्या होता है, जिस तरह का कैरेक्टर मिलता है ना वही आपका रोल होता है। मैं अब अंजनी कुमार नहीं हूं, मैं किसी दूसरे चरित्र में जाऊंगा,
दूसरे कैरेक्टर को निभाऊंगा तो वहां मैं अंजनी कुमार नहीं रहूंगा, मैं दूसरा आदमी बन जाऊंगा, मतलब दूसरे चरित्र को निभाऊंगा। उसके संवाद ठीक उसी तरह बोलूंगा जैसे वो बोलता है, वो ठीक उसी तरह सोचूंगा जैसे वो सोचता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करूंगा, जिस तरह वो चलता है उसी तरह चलूंगा, जिस तरह वो सोचता है उसी तरह सोचूंगा, जिस तरह वो हंसता है उसी तरह हंसूंगा, जिस तरह वो रोता है उसी तरह रोऊंगा, जिस तरह वो बोलता है उसी तरह बोलूंगा। मतलब एक प्रयास होगा। आसपास भी अगर हम उस कैरेक्टर के आसपास भी आ जाते हैं तो एक्टिंग जो है लगभग पूरी हो जाती है। लेकिन उस कैरेक्टर से हम आउट हो जाते हैं, कैरेक्टर किसी तरह बोल रहा है, चलता है किसी तरह, डायलॉग कुछ और है उसका, उसकी मनोदशाएं कुछ और है, वो गुस्सा किस तरह करता है, प्यार किस तरह करता है, नफरत किस तरह करता है, हूबहू अगर हमने निभा दिया तो वो कैरेक्टर को हमने जी लिया। तो कैरेक्टर को जीने की बात होती है। लाइफ में भी, लाइफ में अगर आपने जिया नहीं किसी भी चीज को तो आप कामयाब नहीं होते हैं। किसी भी क्षेत्र की बात है, अगर मैं किसी भी कैरेक्टर की बात करूं, उस कैरेक्टर में हम नहीं जीते हैं तो फिर हम कामयाब नहीं होते हैं। मान लीजिए मैं एक लीडर हूं, तो लीडर की तरह अगर नहीं बोलूंगा तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं अच्छी बातें नहीं बोलूंगा, जनता को लोभ नहीं दूंगा, जनता को, जनता के दुख दर्द को नहीं समझूंगा, उनकी समस्या को दूर करने की बात नहीं करूंगा, तो वो लीडर का रोल परफेक्ट नहीं होगा। जनता को एड्रेस ठीक से नहीं करूंगा, जनता की बाधाएं समस्याओं को दूर करने की कोशिश नहीं करूंगा, उस तरह की बातें नहीं करूंगा, लोगों से नहीं मिलूंगा, लोगों की इज्जत नहीं करूंगा, तो मैं सही नेता नहीं बन पाऊंगा। दूसरों के लिए नहीं जीऊंगा तो मैं सही नेता नहीं बन पाऊंगा। तो वो है। और इस सबसे पहले जो प्राइमरी चीज है आपका हेजिटेशन। सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब हिचक। अरे मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं कैसे बोल पाऊंगा, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे डायलॉग याद नहीं हो रहा है, मैं क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा। ये जो हेजिटेशन है, डाउट, इस डाउट को सबसे पहले क्लियर करना होता है। सबसे पहले आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं, कितने लोग हैं, कम लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मुझे याद रहेगा कि नहीं, ये भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं हेजिटेशन, हिचक। किल योर हेजिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइफ में आपको अगर हेजिटेशन रहेगा तो आप एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी फेस नहीं कर पाएंगे। आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, बोलेंगी मेरा नाम जो है पूनम कुमारी है, मेरा नाम जो है वीरेंद्र प्रसाद है, सर कैन आई कम, यस यस यू प्लीज कम, व्हाट इज योर नेम, सर मेरा नाम, वो नाम ही बोलना भूल जाएंगी, वीरेन। तो हेजिटेंट जो ही होंगी, आप में हेजिटेशन होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हेजिटेशन वहां होता है जहां कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस कहां से होगा? कॉन्फिडेंस तभी होगा जब किसी चीज के बारे में नॉलेज होगा। नॉलेज इज पावर। नॉलेज किसी चीज की हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप किसी भी चीज को किसी भी वक्त फेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मतलब यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एनीथिंग। जिस चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हो ना, यू मस्ट हैव द नॉलेज। अगर मैं एक्टर हूं तो एक्टिंग क्या चीज है उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, और एक्टिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी तो मुझे नॉलेज नहीं होगा एक्टिंग का, और मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हेजिटेशन सबसे पहले रहेगा, और मैं डायलॉग भूल जाऊंगा, मैं एक्सप्रेशन भूल जाऊंगा, बॉडी लैंग्वेज मेरा खराब हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। आई बात समझ में? तो नॉलेज जो है वो पहला बेसिक है। नॉलेज अगर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो फिर आपका हेजिटेशन खत्म होगा। हेजिटेशन खत्म होगा तो आप एज एन एक्टर काम कर सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट इंटरव्यू फेस करते हैं, आप एज ए लीडर फेस करते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, जो भी बनना चाहेंगे आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। जहां भी जाएंगे
आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी होगी। और जिस चीज की जानकारी नहीं होगी उस फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव नो नॉलेज, एंड नॉलेज इज पावर। नॉलेज गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, जैसे मैं एक्टर हूं, मुझे डायलॉग पढ़ने आती है, नहीं आ रही, अरे अरे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है सर, डायरेक्टर साहब मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो डायरेक्टर बोले गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम कैसे आ गए? तुम्हें डायलॉग नहीं पढ़ी जा रही है, तुम्हें याद नहीं हो रहा है, तुम क्या बोलोगे? तुम किस कैरेक्टर को निभा पाओगे? गूंगे का रोल करोगे? तो कहने का मतलब बेसिक्स है कि हमें पढ़ने, मुझे पढ़ना आना चाहिए, मुझे डायलॉग याद होना चाहिए, डायलॉग कैरेक्टर को समझना चाहिए, कैरेक्टर में आने के बाद हेजिटेशन खत्म होनी चाहिए, हेजिटेशन के बाद टाइमिंग होती है, एक्टर के साथ को एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन होता है, डायलॉग बोलने के समय बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर के हिसाब से बोलना है, गुस्सा करना है या नफरत करना है या प्रेम करना है या डरना है या रोना है, वो सारी चीजें उसमें निहित होंगी, तब मैं एक्टिंग कर पाऊंगा। और ये सारी चीजें मेरे मन में रहेगा कि मैं भूल जाऊंगा, डर जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा। तो नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। करो ना, प्रोसीड करो फर्दर ना, आ जाओ। अरुण सर इधर है, अरुण सर एक मिनट, अरुण सर इसमें आए ना, अरुण सर। डॉक्टर साहब जी, कंक्लूडिंग रिमार्क को आप एक एक व्यक्ति हो ना इधर, आपको आना पड़ेगा इधर। Now I request Dr. Arun Kumar to address the gathering. ओके, नाइस। मंच खाली जा रहा है, मंच खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए, कुछ बोलिए। मेरे सफर की क्या पूछते हो ऐ दोस्त, जलते हुए पड़ों से उड़ा हूं मैं तो। अजय पवार। डॉक्टर रविंदर आप एब्सेंट हैं। जी जी जी। डॉक्टर रविंदर आप छूट चुके हैं, दोबारा कनेक्शन बनाइए। अजय पॉल साहब, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ रविंदर जी, अभी आप आए हैं दोबारा, प्लीज प्लीज, आप डिस्कनेक्ट हो चुके थे। रविंदर जी का तो जवाब नहीं है। सर आपका माइक म्यूट है। हमारे बीच अभी अजय पोल जी है, अजय पोल सिंह जी, जी जो जी जी। जो बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, सिनेमा में, थिएटर हाँ, में। आपने क्या बहुत सारी इनकी ऐड देखी होंगी टेलीविजन पे। अजय पोल सिंह, हाँ, हाँ, हाँ। ये आपके जम्मू के हैं, और ये काफी, इनको भी हम बीच में बुलाएंगे। सर हमारा सौभाग्य है सर कि आप यहाँ पे आए और सर हमारे बीच है। तो ग्रेट। इट्स माय प्लेयर, प्लीज 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 कंटिन्यू। अरुण सर यू प्रोसीड। तो डॉक्टर अनिल बोलने वाले थे शायद। अरुण सर माइक, आपका माइक देख लीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी सर, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने वक्त निकाला और
हमें इतना इतना अपने विचारों से अवगत कराया। ये हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है सर, करे सर ये हमारे लिए मुझे बहुत बड़ा बड़ी अच्छा बात है, लग और रहा है। हमारे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है इन चीज़ों से। यही यही प्लेटफॉर्म है, यही एरियाज हैं जहाँ से बच्चे आगे निकल के जी ये जी चांसेस रहते हैं कि जहाँ वो कोई भी करियर जो है वो ऑप्ट करें, और ऐसी इंस्पिरेशन जो मिलती है उन्हें, जी तो जी जी। ये एक बड़ा साधन बनता है जिससे जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो अपना एक करियर भी चूज कर सकते हैं। मुंबई में हूँ, और मैं यहाँ पे एक काम करने आया था। जी जी एक्चुअली पिछले कोविड के बाद कुछ 2 सालों से जम्मू से ही आके मैं करता हूँ और फिर वापस लौट जाता हूँ। जो जो कंपनी बुलाती है तो टिकट देती है तो आ जाते हैं। तो अभी भी अच्छी एक बात। ऐड करने आया था ब्रिटानिया का, तो वो किया मैंने, ब्रिटानिया बिस्किट का। बहुत तो बढ़िया सर। उसके बाद मैंने सोचा कि हर बार मैं आता हूँ और लौट जाता हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा टिक लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपने यहाँ पे एक फ्रेंड के पास रुका हूँ, सात बंगला अंधेरी में। और बस दिसंबर 15 के आजू बाजू
लौट जाऊंगा। और अभी देख रहा हूँ यहाँ पे क्या माहौल है, नया कास्टिंग कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट, क्योंकि अंजनी जी को तो मालूम है कि कास्टिंग होता है, ऑडिशन देना पड़ता है, और वो सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जी यहीं रह के जम्मू रह के ही आइए जाइए, क्योंकि क्या है, मुंबई अब रहने लायक नहीं रहा। कोरोना के बाद जो है सब कुछ गड़बड़ हो गया है। कास्टिंग वाले तो है, कास्टिंग एजेंसीज हैं बहुत सारे, बहुत जी सारे कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं। जिनको एबीसी नहीं पता है वो भी कास्टिंग डायरेक्टर हो गए हैं। वो कैसे समझ पाएंगे कौन सा एक्टर क्या रोल कर सकता है। जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मुंबई में। मुंबई अब उस तरह की मुंबई नहीं रही जो पहले वाली थी। जी जी जी, पहले आप वाली ठीक कह रहे बात नहीं रही। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कभी कभी रह जाइए, जैसे 15 दिन रह गए, एक हैं। महीने रह गए। हाँ और हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनसे संपर्क करने से कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। जी। अब लेकिन आज फिर का से माहौल बनना। जो विषय था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, और अरे सर, मैं मुबारकबाद देता हूँ रविंद्र जी को कि इन्होंने ऐसा टॉपिक चुना। मेरे अवश्य ख्याल सर। से इस टॉपिक के ऊपर अभी और चर्चा होनी चाहिए, जी तो जी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिनेमा एक नई विधा है जो पिछले 101 साल से लगभग 100 सवा 100 साल से चल रही है, और ये एक सोसाइटी में अपना योगदान कर तो रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े अच्छे लेवल के ऊपर इसका रोल जो है, इसका फायदा जो है वो लिया जा सकता है। जी सिर्फ एक इंटरटेनमेंट तक ही महदूद ना रह के ये एक इंफॉर्मेशन का जरिया है, एक जी दृश्य माध्यम है। बिल्कुल जैसा कि आप बिल्कुल। सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में दृश्य प्रधान रहता है। तो हमारे जो इवन आदिकाल से हमारे जो वेद थे, 4 वेद जो थे, जब सब लोग नहीं समझ पाए तो 5वां वेद लाया गया, नाट्य वेद को लाया गया, ताकि वो दृश्य के माध्यम से लोगों को पढ़ाया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि जीवन कैसे यापन करना है, कौन सी चीजें अच्छी होती हैं, कौन सी बुरी हैं। नाट्यशास्त्र में साफ लिखा है कौन कौन सी चीजें जो हैं आप स्टेज के ऊपर कर सकते हैं। आप खाना नहीं खा सकते स्टेज के ऊपर, आप गाली गलौज नहीं कर सकते स्टेज के ऊपर। मतलब गाली गलौज से मेरा मतलब है कि मार धाड़, मतलब कत्ल का सीन या कुछ ऐसा, या सेक्स का सीन, ये सब कुछ वर्जित है। तो जी नाट्यशास्त्र तो क्लियर है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये जी अच्छी बातें नहीं है। और इसी तरह से हमारे शास्त्रों में तो मतलब जो सिनेमा है, सिनेमा मेरे को लगता है कि आदिकाल से एक सिनेमा का स्वरूप जो है वो हमारे धर्म में रहा है। और हमारी देवता शिव जी भगवान हमारे पहले नाटक कलाकार हैं। नटराज नटराज। नटराज, तो वो हम उनकी पूजा करते हैं। हम अब अपने से कलाकारों की पूजा करते हैं। और हमारे नंदी जो कितने अगेन ही इज ए वेरी गुड सी आर्टिस्ट। सी नंदी का आप देखिए कि नंदी जी का जी रोल क्या है। सो बिल्कुल। ऐसे ही और बहुत सारे मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताएं हैं, वो नाटक से जुड़े रहे हैं। और इसलिए हमारे धर्म में नाटक की ये बड़ी परंपरा रही है, सिनेमा अहम की। भूमिका है। सिनेमा मतलब नाटक में सिनेमा को नाटक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही दृश्य माध्यम है। और आदिकाल से सोसाइटी जो है वो जी इस दृश्य माध्यम से और इन सब चीजों से प्रभावित होती रही है। इसी तरह जरिए हमारे पास रामायण आए, इसी जरिए हमारे पास दूसरी चीजें आई। और ये बहुत अच्छी बात है। रविंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं कि आप जरूर डेफिनेटली सर, ये सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा में बहुत सारे हम ऐसे लेक्चर करवाने वाले हैं आने वाले जी टाइम में। और जी लेक्चर नहीं, हम लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे इसके ऊपर। जी जी हम बुक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इनको।
जी। और And मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को आप सिनेमा, अच्छा सिनेमा, सार्थक सिनेमा दिखाइए बच्चों को। वो सिर्फ अमिताभ बच्चन और सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में ही फिल्में नहीं होती हैं। राइट हाँ, फिल्में और भी बहुत कुछ होती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आप 5 मिनट देख लेंगे तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक की वो डॉक्यूमेंट्री देखते रह जाएंगे, आप उसमें डूबे रहेंगे। सो वही एक ताकत है सिनेमा की। राइट सर, वो आपको वो सारा जानकारी दे रही है। तो इस किस्म का सिनेमा तो आप दिखाइए। इंडियन जो क्लासिकल सिनेमा है वो दिखाइए, वर्ल्ड क्लासिकल सिनेमा दिखाइए, दुनिया भर का सिनेमा आप बच्चों को दिखाइए। तो उनसे उनका ज्ञान बढ़ेगा ही, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय प्लेयर। सबसे पहले दिस सेशन वाज हाईली इंसाइटफुल, बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा के बारे में बोला, आपने सिनेमा का रोल लाइफ में क्या उसके बारे में आपने बात की, आपने बच्चों से इंटरेक्शन की, आपने जो फोर्थ कमिंग हमारी चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा की आपने। तो आपने सिनेमा एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी के साथ साथ आपने सिनेमा किस तरीके से एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उसके बारे में आपने डिटेल में बताया। मैं सबसे पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं अंजनी कुमार जी, जो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया है, भोजपुरी में काम किया है, तेलुगु मूवीज में काम किया है। तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया और बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से आपने बच्चों से इंटरेक्ट किया और वी आर हाईली थैंकफुल टू यू। और मैं यहाँ पे जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर प्रज्ञा खन्ना मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पर्टिकुलर जो हमारा एक्टिविटी थी सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा की, इसको करने की परमिशन दी और हमने ये सक्सेसफुली करवाया इस पर्टिकुलर इवेंट को, एक्टिविटी को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कॉलेज में हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जो डॉक्टर सुखदीप सर, डॉक्टर नेहा मैम, प्रोफेसर मंजूत सर एंड प्रोफेसर किरण थापा मैम, और बाकी जितने भी कॉलेज के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर सुजात सर, प्रोफेसर राजेश सर, प्रोफेसर राकेश सर, प्रोफेसर ज्योति मैम, और जितने भी फैकल्टीज है कॉलेज के जो भी है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में और करवाने में सपोर्ट किया। और खास तौर पे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया ऑफलाइन, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे आए जिन्होंने ऑफलाइन पार्टिसिपेशन किया, आपको देखा, आपको सुना और एक अंडरस्टैंड किया कि सोशियोलॉजी ऑफ सिनेमा क्या है। क्योंकि अंजनी सर थोड़े टाइम पहले यही मुझे पूछ रहे थे कि सोशियोलॉजी का और सिनेमा का क्या रिलेशन है, तो अभी मुझे कह रहे हैं कि काफी गहरा संबंध है। हालांकि हमने उनको बताया, लेकिन जो आपकी प्रेजेंस में हुआ वो उनके माइंड को काफी इम्पैक्ट करेगा। मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा अजय पॉल सर का, कि उन्होंने हमारी जो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप जुड़े, वो जुड़े। अजय पॉल जो हमारे बीच हैं अभी, वो एक बहुत बड़े एक्टर है। आपने बहुत बार इनको मूवीज में देखा होगा। अभी लाल कप्तान में ये है जो बहुत सैफ बड़ा अली एक्टर खान नहीं हूँ, बस एक्टर हूँ बस। सर बोला, ठीक है। तो लाल कप्तान में ये है, और साथ में बहुत सारी ऐसी एड्स जो आप देखते हैं किसी भी बड़े एक्टर के साथ, आपको ये वहां पे दिख जाएंगे। और उसके साथ साथ ये बहुत सारा काम कर रहे हैं लिटरेचर पे, जम्मू के सिनेमा पे। तो हम जरूर जम्मू के सिनेमा को आगे प्रमोट करने में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट काफी रोल प्ले करेगा उस क्षेत्र में। सो थैंक यू एवरीवन जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, वेबिनार का, टॉक का, सेशन का पार्ट रहे। और वी आर हाईली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। तो सर इसी के साथ हम इसको आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम इस टाइप की एक्टिविटीज को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे और बिल्कुल एक होलिस्टिक मेथोडोलॉजी से चीजों को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वी आर हाईली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।
चलो भाई शिवा, हो गया। तो चश्मा खोल ले गया रे। अरे चश्मा के खोल ले गया क्या? हाँ। चलो नहीं आएगा, आएगा तो ना। चल सकता हूँ।